Hello, dear students. The chapter which we are going to learn today is nutrition in plants. Food is the most important and basic thing for life. Plants are capable of making their food themselves, but humans and animals cannot. Organisms need food to obtain energy, obtain materials for growth, obtain materials for repair of damaged body parts, and also carry out life processes. Nutrition. What is nutrition? The process of taking in food and its utilization by living organisms to obtain energy for their growth and development is known as nutrition. Now let's discuss about the modes of nutrition. There are mainly two modes of nutrition in living organisms. First one is autotrophic mode of nutrition. It is a nutrition in which organisms can prepare their own food. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, that is known as autotrophic mode of nutrition. And the organisms which can prepare their own food are called autotrophs. Heterotrophic mode of nutrition is the second type of mode of nutrition. It is the nutrition in which organisms get their food directly and indirectly from plants. They cannot prepare their own food. So organisms which cannot prepare their own food are called heterotrophs. Now examples. Autotrophic mode of nutrition is carried out by all green plants and even blue-green algae. Heterotrophic mode of nutrition can be categorized into parasitic, saprophytic plants, symbiotic plants and insectivorous plants. Parasitic plants can be subdivided into total parasitic and partial parasitic. Students, do you know how the plants make their own food? I think you are well aware with the word photosynthesis. It is the process by which plants prepare their own food. And what do they use for that? They use inorganic substances like carbon dioxide and water. And they also need presence of sunlight for this process. अब ये क्वेश्चन आता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनके बनने में लिविंग थिंग्स का कोई रोल नहीं होता है. They are completely made by non-living things. Oxygen is also released during the photosynthesis process. The process of photosynthesis takes place in green leaves of the plant. The food prepared by the green leaves of the plant is in the form of a simple sugar called glucose. और जितना भी ग्लूकोज उनकी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए उतना प्लांट्स यूज़ अप करते हैं एंड द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च. Starch is again a type of carbohydrate but it is a complex carbohydrate. Now ये स्टार्च जो होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग carbohydrate. Requirement for photosynthesis, as we have already discussed, they need sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Now plants carbon dioxide कैसे obtain करते हैं? There are very tiny openings on the surface of the leaves which are known as stomata. इन tiny openings के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में एंटर होता है. Each stoma is surrounded by a pair of guard cells और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करने का काम जो होता है वो गार्ड सेल्स करते हैं. How the plants obtain water for photosynthesis? Okay, normally water और minerals जो होते हैं they are in the available in the soil. The raw water required by the plants for photosynthesis is absorbed by root of the plants from the soil through the process of osmosis. ये जो roots होते हैं वो इस water को stem तक ले जाते हैं and the water is then transported to the leaves in upward direction through the xylem vessel of the leaves. Site of photosynthesis, chloroplast. Chloroplast क्या है? Chloroplasts are the small structure which are present in chlorophyll. Photosynthesis takes place in the leaves of the green plants that you know very well. Now leaves have green colored pigment which is known as chlorophyll. ये क्लोरोफिल का रोल क्या होता है? जो क्लोरोफिल होता है it traps the energy of the sun which is then used to prepare food from carbon dioxide and water. Here you see that solar energy is captured by the leaves and is stored in the plant in the form of food. So we can say that sun is the ultimate source of energy for all living beings. Let us discuss about heterotrophic mode of nutrition. And first type is parasitic mode of nutrition.
अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उनको सब कैटेगराइज कर सकते हैं हम पार्शियल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट में। पार्शियल पैरासाइट में क्या होता है, द प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट वाटर और मिनरल्स के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट प्लांट पर। एग्जाम्पल इज मिसल्टो। टोटल पैरासाइट्स में एज द नेम सजेस्ट वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल और कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एग्जाम्पल इज कस्क्यूटा, इन हिंदी इट इज़ नोन एज अमरबेल। नेक्स्ट टाइप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Insects, yes, they feed on insects. Example is pitcher plant, Venus flytrap. The leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher. उनका शेप एक मटके जैसा होता है और उनके ऊपर एक लिड होता है। जब भी एक इंसेक्ट पिचर के अंदर एंटर होता है तो लिड अपने आप बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ज्यूसेस सिक्रीटेड इनसाइड द पिचर। उस पिचर के अंदर डाइजेस्टिव ज्यूसेस रिलीज होते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाईट्रैप। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, उसके ना 2 पार्ट्स होते हैं और इनर सरफेस जो होती है ना उसमें स्टिफ हेयर होते हैं एंड इट इज़ रेडिश इन कलर, सो दैट इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। व्हेन द इंसेक्ट टचेज द हेयर द लोब्स मैश अप, वो अपने आप बंद हो जाते हैं एंड इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। Next is saprotrophs or saprophytes. They are the non-green plants. Yes, you got it right. Non-green plants मतलब उनमें chlorophyll नहीं होता है. And if the chlorophyll is not there, obviously they cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying organic matter. Now the question is, what is dead and decaying matter? ऑर्गेनिक मैटर मतलब लिविंग थिंग से रिलेटेड जो कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो या तो मर चुका है या जो सड़ रही है। आपने देखा होगा कि ब्रेड या रोटी अगर 4-6 दिन आप रखते हो और अगर मॉइस्चर अच्छे से है एटमॉस्फेयर में तो उनके ऊपर फफूंद लग जाती है। दैट फफूंद इज़ एक्चुअली ब्रेड मोल्ड। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ इज मशरूम। नाउ वो क्या करते हैं, दे रिलीज डाइजेस्टिव ज्यूसेस ऑन द डेड एंड डीकेइंग मैटर। जो ऐसी सड़ रही है, ख़राब चीज़ हो रही हैं, वो उन्हें खाते कैसे हैं, हाउ डू दे फीड ऑन इट। वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं ताकि ये जो मैटर होगा वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड दे कैन ईजीली एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉल्यूशन। नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक अगर अपना शेल्टर शेयर करता है तो दूसरा न्यूट्रिएंट शेयर करता है। सच रिलेशनशिप वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल इज लिचेंस। इन लिचेन एन आल्गा एंड अ फंगस लीव टुगेदर। आल्गे एंड फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब आल्गा जो है वो ग्रीन कलर्ड होता है, क्लोरोफिल होता है, इट कैन डू द फोटोसिंथेसिस एंड इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, बट इसको एक प्रॉपर शेल्टर चाहिए। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय फंगस। फंगस इज़ अ नॉन ग्रीन प्लांट, उसको क्लोरोफिल नहीं है, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। तो आल्गा शेयर्स द फूड एंड फंगस शेयर्स द शेल्टर विथ इट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनरिचिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अगर किसी एक फील्ड में कंटिन्यूसली सेम टाइप के क्रॉप अगर हम ग्रो करेंगे तो कुछ समय बाद वो सॉइल जो होती है इट बिकम्स डेफिशिएंट इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें कमी आ जाती है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन। देयरफॉर द सॉइल शुड बी एनरिच्ड विद दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप द प्लांट हेल्दी। अगर क्रॉप में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो अगर प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो वी मस्ट कीप इट हेल्दी, वी मस्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम। अब व्हाट आर द वेज टू एनरिच द सॉइल? एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ज़मीन का उपजाऊपन अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें आप खाद, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। अनदर वे इज़ ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पीस। चना है, मटर है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें एक स्पेशलिटी होती है, उनके जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं और वो एक नोड्यूल के फॉर्म में हम देख सकते हैं। एंड व्हाट डू दीज राइजोबियम बैक्टीरिया डू इज़ दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें पता है कि एयर में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस मौजूद है तो वो नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो राइजोबियम बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में, जिसे प्लांट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन किस लिए यूज़ होता है प्लांट्स के द्वारा? प्रोटीन्स को बनाने के लिए, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।